this is lecture number 6 of alternating current, and in this lecture we will study about the series connection of LCR circuit. We will study about LCR circuit, in which we will connect resistance, capacitance and inductance in series, and we will analyze that circuit, and then we will derive some important formulas, and then we will see some important questions based on those formula. So before we start the LCR circuit, let me teach you one very important concept, and this concept we have studied in current electricity also, right? Now if we talk about a resistance, a pure resistance, so in pure resistance, from Ohm's law we can write that delta V is equal to IR. Now the important thing to focus on this formula is this delta V. The delta V represents the drop in potential across this resistance. For example, if we apply 30 volt on this point and 10 volt on this point, then drop through this resistance, that is delta V, that will be equal to 20 volt. So this is the main important point. We have studied this in current electricity also. And if we come back to alternating current, we have studied that if there is only pure resistance in the circuit, then current and the potential across resistance are in the same phase, that is the phase difference will be 0 degree. Done? So here the important point was delta V is basically the potential drop, right? And we have studied the phasor diagram also. Phasor diagram, both potential and current are in the same phase. Now if we have only inductor in the circuit, and for inductor if we try to apply the Ohm's law, that will be delta V is equal to I into R, and in place of R we will write XL, because for inductor the resistance is basically the inductive reactance. Done? And here also the delta V represents the drop across this inductor, and we also know that if we write E lead, if we write this word, that means E, that means potential, L for lead and L for inductor. So E will lead in inductor in respect to current. So we can make the phasor diagram also, that in inductor, if this is basically the current, then the voltage will lead. So this will be the voltage, and voltage will lead by pi by 2. So this also you have to remember. Now if we talk about capacitor, in capacitor again delta V will be equal to I into XC. Again this delta V is basically the drop across this capacitor, and if we try to draw the phasor diagram, then we know that if E leads in inductor, then in capacitor E will be behind the current by pi by 2. So here the phasor diagram will be, if this is I, then E will lag in with respect to current by pi by 2. So this phasor diagram you have to learn and understand. And now let's study about the series connection of LCR, यानी कि we are talking about series connection of LCR circuit. अब यहाँ देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर उस फॉर्मूला के बेस्ड पे हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे. अच्छा देखिए, ये आपके पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये आपके पास इंडक्टर है, और ये आपके पास कैपेसिटर है. अच्छा पहले तो ये बताइए, जब आप एक इंस्टेंट पे, अगर हम बेसिकली ये जो एसी सप्लाई की बात करते हैं, तो ये एसी सप्लाई होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. अच्छा एक इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो सब में सेम करंट होगा, जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाएगा. तो एक इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो सेम होगा सब में. ठीक है. अच्छा ध्यान से सुनिए.
अच्छा, जो बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो ड्रॉप होगा दैट विल बी वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी वी एल, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी वी सी। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, यानी कि ई लीड करता है इंडक्टर में, और कैपेसिटर में ई पीछे चलेगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टेंस के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, इंडक्टर के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, एंड कैपेसिटर के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं सबका साथ में। तो देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में करंट, ये करंट है, और रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम ही साथ साथ होगा, करंट और वोल्टेज। फिर इंडक्टर में आइए, इंडक्टर में ई लीड करेगा करंट से, और सिंस करंट सब में सेम है तो सबके लिए ये लाइन सेम बनेगा। अब देखिए, इंडक्टर में ई जो है वो लीड करेगा आई से, तो ये इंडक्टर के लिए हो गया। सो दिस इज वी एल, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। और आपको पता है कैपेसिटर में ई पीछे जाएगा आई से, तो ये हमने कैपेसिटर के लिए बना दिया वी सी। तो ये फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि जो वी एल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज ग्रेटर देन वी सी। तब आप बताइए, अगर ये दोनों अपोजिट हैं, ये ज़्यादा है, तो क्या हम यहाँ पे एक नेट वेक्टर बना सकते हैं वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो ये हमने नेट वेक्टर बना लिया वी एल माइनस वी सी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम वी एल और वी सी में फेज डिफरेंस आपसे पूछे, क्या पूछे, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किसके बीच में, वी एल वी सी में, तो आप बोलिएगा कि इस दोनों में फेज डिफरेंस अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री है, और इसको बेसिकली हम बुलाते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बुलाते हैं, आउट ऑफ फेज, क्योंकि 180 डिग्री है, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। फिर अगर हम आई और वी आर में फेज डिफरेंस आपसे पूछे, तो देखिए दोनों सेम साथ साथ हैं, तो इस दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 0 डिग्री, और इसको हम बुलाते हैं इन फेज। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा, डन। अच्छा, क्या हम इस दोनों वेक्टर का एक इक्विवेलेंट वेक्टर ले सकते हैं? आप पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। तो ये जो वेक्टर है आपके पास, इसको हम बोल देते हैं वी वेक्टर, और ये जो एंगल है इसको बोल देते हैं फाई। तो क्या यहां से हम इस ट्राइंगल को उठा करके अब इस ट्राइंगल को एनालाइज करेंगे और इसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे। सो हमने इस ट्राइंगल को उठा करके यहां पे लाया है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर, तो दैट विल बी वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने वी एल माइनस वी सी इसलिए किया है क्योंकि वी एल बड़ा हमने कंसीडर किया है वी सी से। अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि वी सी बड़ा है तो आप वी सी माइनस वी एल कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये v, आप दोनों साइड बेसिकली रूट ले लीजिए, तो ये v विल बी इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बना। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इस पूरे सर्किट में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आते हैं, पढ़ के आते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको बेसिकली इस रेजिस्टेंस का जो आर होगा, रुकावट, उसको आर बुलाते हैं। इंडक्टर का जो रुकावट है उसको आप एक्सएल बुलाते हैं। कैपेसिटर का जो रुकावट है उसको आप एक्सी बुलाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे सर्किट में अगर तीनों कनेक्ट करते हैं तो तीनों को मिलाकर के जो रुकावट आता है उसको एक नया नाम देते हैं जेड, और जेड को हम इम्पीडेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इम्पीडेंस बुलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, क्या अगर हम पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो पूरे सर्किट में है, क्या इसको हम ओम्स लॉ लगा करके V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई और जेड के आर के जगह पे जेड लिख सकते हैं क्या?
क्योंकि जेड पूरे सर्किट का वो रुकावट है जिसको इम्पीडेंस बुलाते हैं। तो आई जेड का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में आई जेड का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाइए तो V इक्वल टू आई आर, आई और आर का होल स्क्वायर प्लस VL क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, उसके लिए ओम्स लॉ लगाइए तो I इंटू एक्सएल का I इंटू एक्सएल और कैपेसिटर के अक्रॉस I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा सब में देखिए आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए आपके पास जेड स्क्वायर आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जेड रूट आप अंदर ले जाइए, रूट दोनों तरफ से रूट ले लीजिए तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर पूरे सर्किट का रुकावट पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस रुकावट, इंडक्टर का रुकावट। एक्सी क्या है, हाँ कैपेसिटर का रुकावट, और एक्सएल आपको पता है ओमेगा एल के बराबर होता है और एक्सी 1/ओमेगा सी के बराबर होता है और ओमेगा 2 एफ के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डन। अच्छा अब आप क्या करिए, इस ट्राइंगल में tan फाई लगाइए, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन VR। tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा VL माइनस VC अपॉन R। अच्छा क्या VL को हम IXL लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए IXL, और VC को ओम्स लॉ लगा करके, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, कैपेसिटर में R की जगह XC लेंगे तो माइनस I इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे R VR, ये VR था, ये VR था, तो यहाँ VR, तो यहाँ VR रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो दैट विल बी I इंटू आर। अब देखिए करंट सब में कैंसिल, तो tan फाई आ गया आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी है, क्वेश्चन का डिमांड होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर देंगे। और बताइए ये tan फाई है क्या, हाँ ये tan फाई है कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है और जो करंट है उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वही तो है tan फाई। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ये और एक ये वाला, अगर ये आपको याद है और सर्किट देख करके फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास LCR सर्किट गिवन है और आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर 10 ओम लिखा हुआ है, इंडक्टर के ऊपर 5 ओम लिखा हुआ है, कैपेसिटर के ऊपर 15 ओम लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इंडक्टर के ऊपर 5 ओम लिख के दे दे तो ये एक्सएल का वैल्यू है, कैपेसिटर के ऊपर 15 ओम लिख के दे दे ये एक्सी का वैल्यू है। तो आपके पास एक्सएल, एक्सी और आर का वैल्यू आ गया। अच्छा और आपने एक एसी सप्लाई दिया है 100 साइन 100 पाई टी, तो क्या इसको हम एक बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपके पास देखिए V नॉट जो है वो 100 के बराबर आ गया और ओमेगा जो है वो 100 पाई के बराबर आ गया। अच्छा जब इतना आप क्वेश्चन से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए। आपसे पूछा फाइंड रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, यानी कि आपको क्या बताना है, यानी कि आपको इस सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है वो बताना है, और करंट दौड़ रहा है मतलब IRMS बताना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR। पूरे सर्किट में तीनों कंपोनेंट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम Z लिखते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। अच्छा VRMS आपको पता है V नॉट अपॉन √2 होता है और V नॉट आपको गिवन है 100, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन √2। IRMS निकालना है, R आपको गिवन है 10 ओम, XL आपको गिवन है 5, XC आपको गिवन है 15। अब आप देखिए XC बड़ा है तो यहाँ XC माइनस XL करेंगे, पॉजिटिव चाहिए, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप XL माइनस XC या XC माइनस XL कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास IRMS आ जाएगा। एक बार IRMS आ गया तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। फिर आपसे पूछा फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I का फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू XC
माइनस एक्सएल अपॉन आर या एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। डन। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 10 फाई, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एक्सी का वैल्यू है 15, एक्सएल है 5, आर है 10, आपके पास फेज डिफरेंस आ गया 10 फाई 1। अच्छा 10 फाई 1 है तो क्या फाई को 45 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू बताना है। आपके पास देखिए आई आर एम एस आ गया है। पीक वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट निकालना है, आई आर एम एस पता चल गया है, आई नॉट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करिए, एक करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कैसे हम क्यों प्लस लगाएंगे और क्यों माइनस लगाएंगे। पहले तो देखिए आई नॉट किसके बराबर आ गया, यहाँ से निकाल चुके हैं तो आई नॉट 5√2। ओमेगा पहले से आपको पता है 100 पाई तो रख दिए, और फाइव आप निकाल चुके हैं 45। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस उसके बारे में सुनिए ध्यान से। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो रेजिस्टेंस को हटा दीजिए। अब आप इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, एक्सी बड़ा है, तो ओवरऑल जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा। ओवरऑल जो सर्किट होगा वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे जाता है, और अगर वोल्टेज करंट से पीछे जाता है तो आई को यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आई को ज़्यादा बनाना है तभी तो वोल्टेज पीछे जाएगा। तो यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड्स कि एक्सएल और एक्सी में से कौन बड़ा है। यहाँ एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, सो कैपेसिटर में आई आगे होता है, सो पॉजिटिव लिखे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू तो 1 ओम है, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर लिख के दे दिया 3 × 10⁻⁻² हेनरी। तो हेनरी दे दिया ना, तो ये आपको इंडक्टर एल का वैल्यू गिवन है, और कैपेसिटर के ऊपर लिख के दे दिया 0.5 × 10⁻⁻² फैराड। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से पहले आप एक्सएल और एक्सी निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, और आपको देखिए एसी सप्लाई गिवन है 200 वोल्ट 100 रेडियन पर सेकेंड। तो 100 रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा आपको गिवन है, और ये वी आर एम एस गिवन है, क्योंकि कुछ नहीं तो वी आर एम एस। एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल कैसे निकालेंगे, ओमेगा 100, एल हो गया 3 × 10⁻², एक्सएल आ गया। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा 100 है, सी आपके पास 0.5 × 10⁻² है, तो आपके पास एक्सी आ गया। एक बार एक्सएल आ गया, एक्सी आ गया, फिर आपसे पूछा है कि इस सर्किट में करंट बताइए। करंट मतलब आई आर एम एस बताना है, तो पूरे सर्किट में आप ओम्स लॉ लगाइए, V = IR। पूरे सर्किट में 3 पार्ट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, इसलिए हमने जेड लिया है इम्पीडेंस। वी आर एम एस आपको पता है 200। जेड पहले निकालना पड़ेगा, और जेड निकालने का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। और सिंस यहाँ पे एक्सएल बड़ा है एक्सी से, देखिए एक्सएल जो है 3 है, एक्सी 2 है, तो एक्सएल बड़ा है एक्सी से, इसलिए एक्सएल - एक्सी लिए। तो यहाँ से जेड आ जाएगा, जेड आ गया √2। IRMS निकालना है, IRMS का वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर निकालना है पीक करंट, हाई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। IRMS आ गया है, आई नॉट निकालना है पीक करंट, तो आई नॉट आ जाएगा। फिर निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा 10 फाई = XL - XC अपॉन आर। एक्सएल भी है, एक्सी भी है, 10 फाई आ गया 1, 10 फाई अगर 1 है तो फाई आ गया 45 डिग्री। फिर आपसे पूछा है कि करंट का इक्वेशन बताइए, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे, आई = आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अच्छा सिंस अब देखिए एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो ओवरऑल सर्किट इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता है इंडक्टर में ई लीड करता है, करंट पीछे जाएगा, तो करंट पीछे जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। आई नॉट निकाल चुके थे 200, ओमेगा आपको पहले से गिवन था 100, और यहाँ पे आप माइनस लीजिएगा, और फाई हम निकाल चुके थे 45 डिग्री। देखिए अभी हमने LCR सर्किट पढ़ा था, इसमें हमने जेड निकाला था R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, V निकाला था, 10 फाई निकाला था। 10 फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेकिन अगर आपको सिर्फ RL सर्किट गिवन हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टर,
तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर ड्रॉप, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल ड्रॉप, और पूरा ड्रॉप है वी। तो जेड लिखेंगे यहाँ से, मेन यही फॉर्मूला यूज करना है। जेड लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सी 0 है तो ये आ जाएगा एक्सएल का स्क्वायर, ये आ गया जेड का इम्पीडेंस का फॉर्मूला। फिर वी में सिमिलरली वीसी 0 है तो इसको 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया ये फॉर्मूला। tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी 0 है क्योंकि कैपेसिटर एब्सेंट है तो एक्सएल अपॉन आर, फॉर्मूला आ गया। यही याद करना है, उस पर उसके डिराइव कर लेंगे। फिर देखिए आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर गिवन है आरसी सर्किट, तो अगेन ये फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इंडक्टर एब्सेंट है तो एक्सएल 0 लेंगे, तो ये जेड का वैल्यू आ गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। वी देखिए वी एल 0 है तो रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, सो सिंपल। tan phi एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, इंडक्टर एब्सेंट है तो 0 माइनस एक्सी अपॉन आर, तो एक्सी अपॉन आर, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्ट है और आपके पास जो इनपुट सप्लाई है दैट इज 100√2 sin 100 पाई टी। तो यहाँ से देखिए वी नॉट अगर आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो वी नॉट आ गया 100, ओमेगा आ गया 100 पाई, ठीक है। आपसे पूछा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 60 वोल्ट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको बताना है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे जो वी नॉट आपको गिवन है, जो ओवरऑल सप्लाई आप दे रहे हैं, ये वी नॉट आपको गिवन है, तो क्या हम यहां से वी आर एम एस निकाल सकते हैं क्या? हाँ, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, तो वी आर एम एस आ जाएगा, वी नॉट है 100√2, तो यहां से वी आर एम एस आ गया 100 वोल्ट। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वीसी ड्रॉप है, वीसी वो 60 वोल्ट है, गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वीसी आरएमएस आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, यानी कि वी आर आरएमएस बताना है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है आरएमएस वैल्यू वो बताना है। उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता है वी आरएमएस पूरे सर्किट में रूट अंडर वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस का एक स्क्वायर। वी आर में हम पूरे सर्किट का जो ड्रॉप है वो निकाल चुके हैं क्योंकि पीक वैल्यू हमको गिवन था। यहाँ से वी सी आर एम एस गिवन है आपको, तो वी आर एम एस यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है बेसिकली रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्ट करके दिया है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम और इंडक्टर के अक्रॉस आपको एल लिख के दिया है और इनपुट सप्लाई आपको गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। आपसे बोला है कि ये वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/3, यानी V लीड कर रहा है करंट से π/3 मतलब हाँ 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है एक्सएल बताइए और आपसे पूछा है एल बताइए, 2 वैल्यू बताइए। अब आप देखिए वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है π/3 से, यानी कि क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है tan phi, इंडक्टर रेजिस्टेंस है तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सी एब्सेंट है तो एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि tan phi फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सी 0 है तो ये आ जाएगा एक्सएल अपॉन आर। अब आप देखिए फाई आपको गिवन है 60 डिग्री, तो tan phi हो गया tan 60 डिग्री हो गया एक्सएल अपॉन 3, तो यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री होता है 3, तो एक्सएल आ जाएगा आपके पास, तो एक्सएल आ गया 3√3। अब आप देखिए ध्यान से, एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल तो आ गया, एल निकालना है तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा आपको 100 गिवन है, एक्सएल आपके पास आ गया था तो आप एल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्ट है, रेजिस्टेंस के ऊपर आर लिख के दिया, इंडक्टर के ऊपर एल लिख के दिया और कुछ सप्लाई दिया है और आपसे क्वेश्चन में बोला है करंट इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू 2√2 sin 100 t माइनस π/4। तो आपसे पूछा फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एक्सएल। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपको ये दिया तो अब आप क्या करिए, यहां से इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तब आप देखिए फाइव का वैल्यू आपको गिवन है π/4, तो क्या हम यहाँ फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंस यहाँ कैपेसिटर एब्सेंट है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। tan phi आ गया 45, क्योंकि π/4 होता है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। tan 45 होता है 1, तो एक्सएल इज इक्वल टू आर, तो रिलेशन बिटवीन पूछा था एक्सएल एंड आर, आंसर आ गया।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि अ कॉइल इज कनेक्टेड थ्रू दिस सप्लाई। जैसे ही आपके वर्ड आया क्वेश्चन में अ कॉइल इज कनेक्टेड बाय दिस सप्लाई, चाहे डीसी हो या चाहे एसी हो, तो कॉइल का मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको आरएल सर्किट के बारे में पूछ रहा है। कॉइल का यही मतलब है, याद रखिएगा। तो कॉइल लिख के देगा, दैट मीन्स आरएल सर्किट गिवन है, तो आरएल सर्किट आपके पास है। अच्छा, फिर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आरएल सर्किट को हम डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही बैटरी आया, डीसी सोर्स आया, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल, जिसको ओमेगा एल लिखते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं, एफ जीरो एक्सएल जीरो, यानी यहाँ पे इंडक्टर का नो रोल। समझ में आया? जैसे ही कॉइल में आपने डीसी सप्लाई दिया, सिर्फ और सिर्फ आप तो पहले मान के चलिएगा एलआर सर्किट, क्योंकि कॉइल का मतलब एलआर सर्किट। डीसी अप्लाई किया, इंडक्टर का रोल खत्म, ओनली आपके पास रेजिस्टेंस वाला सर्किट बच गया। अब क्वेश्चन सुनिए, ये था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन सुनिए, when 10 volt DC is applied in a coil, then current flow through circuit is 2.5 ampere। कॉइल बोला एलआर सर्किट, डीसी सप्लाई 10 वोल्ट का, तो करंट बोल रहा है कि सर्किट में फ्लो किया 2.5 एम्पियर। तो जैसे ही डीसी सप्लाई एलआर सर्किट, एल का कोई रोल नहीं, सर्किट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस का, और आपने डीसी अप्लाई किया है सोर्स 10 वोल्ट का, करंट बहने लगा 2.5 एम्पियर। तो क्या आप यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो V इक्वल टू आई आर लगाइए, रेजिस्टेंस आ गया V अपॉन आई, तो V है 10, करंट है 2.5, तो ये आ गया 4, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास आ गया 4 ओम। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 4 ओम। अब क्वेश्चन देखिए चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन बोला है कि नाउ 10 वोल्ट एसी इज सप्लाइड, यानी कि सेम कॉइल में पहले डीसी सप्लाई किए थे तो इंडक्टर को हटा दिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दिए। अब इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस भी है, एसी सप्लाई दे रहे हैं, 10 वोल्ट का एसी सप्लाई, कुछ नहीं दिया तो यानी वी आरएमएस आपको गिवन है 10 वोल्ट अक्रॉस द सेम कॉइल एंड करंट रिड्यूसेस टू 2 एम्पियर, यानी फाइनल करंट जो आपके पास हो गया दैट इज 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ एक्सएल, आर पहले निकाल चुके हैं, एक्सएल निकालना है, तो आइए देखते हैं कैसे एक्सएल निकालेंगे। अब आप देखिए हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया 4 ओम, करंट ड्रॉप कर गया 2 एम्पियर तक, आपको एक्सएल निकालना है, और एसी सप्लाई गिवन है 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज गिवन है। अब आप क्या करिए, पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू आई आर, आर के जगह पे हम जेड लेंगे तो V इक्वल टू आई जेड। अच्छा बताइए कितना गिवन है वोल्टेज? 10 वोल्ट, करंट कितना हो गया 2, और इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, तो जेड का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एलसीआर सर्किट के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कैपेसिटर खत्म है, कैपेसिटर है ही नहीं, तो जेड का वैल्यू हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर आ गया है 4, यहाँ से एक्सएल आ जाएगा। सो सिंपल।